हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। डियर टैक्स पेयर, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जादव श्रीनिवास। टुडे going to discuss the remaining parts of the TCS on sales of goods. We have already discussed about these topics in my first video, but some part of that lesson, the topics which is still remain to discuss. So, dear my friends and dear taxpayer and viewers, now the remaining part we are going to see here with. So, dear taxpayer, please kindly listen and understand the concept. This concept is going to implement from the 1st October 2020. As you know, everyone, already we have discussed in first video about the TCS on the sale of the goods, considerations, what is the goods, है ना? And when we have to collected the TCS, at what time we have collected the TCS, when we have to collect TCS. About these all things we have already discussed in my first video. Now we are move to the main topics. Uh, Briefly, I would like to remind all those topics we have seen in the my first video. Briefly, I would like to say what we have seen in the first video uh, about the sellers, buyers, and the turnovers, and to whom if no TCS is required to when the buyer is from the central government, या state government or embassy, या commission, high court, legation, consul, and trade representation, foreign state and local authority. TCS not applicable on the services due to COVID pandemic. The rate of TCS has been reduced from 0.1% to 0.075%. If not PAN Aadhaar provided, then the concession will not be available to those exempted transaction. Export is out of the sale of export is out of the TCS qualifying amounts. है ना? These all and point of tax collections and cancellation of sales, payment by third party, है ना? These all things we have already seen. And lastly, we can say here that TCS amount would not need to mention in the invoices, but it is the very it is advisable to us that if we mention the TCS amount in the invoice, the buyer will be alerted, and he can understand the exact value of the tax invoice. So it is advisable to that we have to mention the TCS amount in the tax amount in tax invoices. So now the main topics, the bear means sorry, the next topics means still we have not discussed. Those topics we are going to now discussing. So please, my dear taxpayers, viewers, please kindly listen and listen this video till end of the video. Okay. So now we start the main topics remaining part. हम लोगों ने जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टीसीएस के बारे में, कुछ जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बोला गया है, इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स। अब हम लोगों को ये मालूम है कि क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स हम कब कब इशू करते हैं। तो जब जब हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं
तो क्या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के ऊपर टीसीएस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या उसका इम्पैक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बात को लेकर हमें थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना है। इफ सेल्स रिटर्न या क्रेडिट नोट डेबिट नोट इज बिफोर रिसिप्ट ऑफ एनी कंसिडरेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एनी क्रेडिट नोट डेबिट नोट is before receipt of any consideration, then the impact of thereof will be included in amount of consideration, and accordingly on receipt of the revised consideration the provision of TCS would be applicable। सिंपल सी बात है कि before received the consideration of sale of the goods, if any seller or buyer issued debit credit note, its impact has been to be given in the books, and accordingly that we have to receive the revised consideration, and TCS, the provision of TCS would be applicable on the revised amounts, not a pre amount, है ना। तो सिंपली वी कैन से, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेबिट क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट देने के बाद जो नेट अमाउंट रहेगा उसके ऊपर हमें टीसीएस देना है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज ऑलरेडी रिसीव्ड, अब दूसरा सिचुएशन है, इफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज ऑलरेडी रिसीव्ड एंड टीसीएस इज कलेक्टेड एंड पेड and no impact thereof will be required to be made at the time of passing of entry for sale, return or credit note डेबिट नोट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि if the amount of consideration is already received and TCS is collected and paid and no impact thereof will be required to be made at the time of passing of entry of sales return and credit note डेबिट नोट। क्या बोला जा रहा है कि आपने मान लो इस मंथ से रिलेटेड आपने उतना पेमेंट ऑलरेडी आपने कंसिडरेशन रिसीव कर लिया, ऑलरेडी उतना कंसिडरेशन रिसीव करने के बाद जो भी टीसीएस हमें पे करना था वो टीसीएस हमने भर चुके हैं, और उसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट अगर हम इशू कर रहे हैं या इशू हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट वो कंसिडरेशन में नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। पर however फिर भी अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन, है ना, if the same gets adjusted and net consideration is paid, then on such net consideration TCS would be collected। अभी क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने हमारा एक ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया लेकिन उसके बाद हमें कंसिडरेशन मिला और कंसिडरेशन रिसीव हुआ और उस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली हमने टीसीएस पेड कर दिया, और पेड करने के बाद उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन फर्दर जब हम नेक्स्ट कंसिडरेशन रिसीव करेंगे तो उसका वो कंसिडरेशन में उसका इम्पैक्ट देकर उसके अकॉर्डिंगली जो भी नेटअप अमाउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें टीसीएस शुड बी कलेक्टेड एंड शुड बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट्स, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। Whether TCS provision would be applicable if the amount of sale consideration is adjusted against the amount payable for purchase from said party। देखिए फिर से हम इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, whether TCS provision would be applicable if the amount of sale consideration is adjusted against the amount payable for purchase from said party। In such a situation, though the amount is not received in cash mode, however there is a deemed receipt of consideration through indirect means, through an adjustment of a receivable and payable account, hence TCS should be collected under such a transactions, even past, present or future act is valid consideration under the contract act, and therefore consideration would be deemed to have been received
ऑन एन एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल लिएबिलिटी। अब देखो, हमें इसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए टीसीएस अप्लीकेबल इवन ऑन पार्ट रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन, ये हमें थोड़ा एक डिटेल में समझना है कि टीसीएस हमें कब कैसे भरना है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ऐसे कंपनी है एबीसी। एबीसी कंपनी है ना, टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 वाज 25 करोड़। ठीक है, फ्रॉम द पीरियड अप्रैल 2020 से 30 अक्टूबर 2020 हैज सोल्ड गुड्स वर्थ 50 lakhs to Mr. A and the consideration has been received to ABC. Thereafter, ABC again sold goods worth 75 lakhs on 1st November 2022 till 30 October 2020. ABC has received only 60 lakhs from A. Here in this case, ABC will have to consider the receipt of amount of Rs 60 lakhs inclusive of a TCS and accordingly compute the amount of TCS on gross up basis under amount received। क्या समझ में आया? क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पर ये बोला गया है एबीसी जो कंपनी है उसका जो टर्नओवर है 19-20 का कितना करोड़ का है? 25 लाख का है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है कि अप्रैल 2020 से लेकर अक्टूबर 20 तक उसने कितने लाख का माल सेल किया? 50 लाख का माल सेल किया। किसको सेल किया? ये मिस्टर ए को। एंड कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड एबीसी, जितना का माल उसने सेल किया था 50 लाख का, उतने का माल उसने उतने का पैसा उसने रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? देयर आफ्टर एबीसी अगेन सोल्ड गुड्स वर्थ 75 lakhs। नेक्स्ट उसने कितने लाख का ट्रांजेक्शन किया? 75 लाख का ट्रांजेक्शन किया 1 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान। ठीक है, अब 75 लाख का उसने ट्रांजेक्शन किया, पर एबीसी कंपनी ने पेमेंट कितना रिसीव किया? ओनली 60 lakhs। कितना किया? ओनली 60 लाख किया इंक्लूसिव ऑफ टीसीएस and accordingly compute the amount of TCS on gross of basis as under। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसने नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ, ठीक है, जितना नेट कंसिडरेशन उसने रिसीव्ड किया उसी के ऊपर उसको टीसीएस का पेमेंट या टीसीएस की लिएबिलिटी उसकी बनती है, तो उतना ही टीसीएस उसको देना है, उससे ज्यादा टीसीएस उसको नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले जो जो रिमेनिंग अमाउंट बची है कि उसके ऊपर उसको टीसीएस नहीं देना, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। पर जब भी वो नेक्स्ट कंसिडरेशन मतलब बैलेंस कंसिडरेशन रिसीव करेगा तो उस समय उसको रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट के ऊपर उसको टीसीएस पेड करना होगा या डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हमें यहाँ क्लियर हो गई है। अब हमें समझना है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस एंड डिस्क्लोजर इन टीसीएस रिटर्न। अब इसकी क्या डेट है? द अमाउंट कलेक्टेड टीसीएस बाय द सेलर अदर देन एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट shall be paid to the credit of central government within 1 week from the last day of the month in which the collection is made। ठीक है, इसमें क्लियर बोला है कि मंथ खत्म होते ही 7 दिन के बाद, है ना, 7 दिन के बाद, वीक है ना, फ्रॉम विद इन 1 वीक। अब एक मान लेते हैं कि 7 दिन में या 7 तारीख को मंथ खत्म होते ही 7 तारीख को टीसीएस का पेमेंट डिपॉजिट करना
पड़ेगा मैंडेटरीली। अगर विद इन 7 डे या विद इन 1 वीक या 7 तारीख तक अगर पेमेंट नहीं किया जाएगा तो इंटरेस्ट अट्रैक्ट होगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, अभी ये तो हमने पेमेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि टीसीएस का कौन सा रिटर्न हमें फिलअप करना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी टीसीएस का रिटर्न भरते आ रहे हैं 27E2। तो इसी के ऊपर हमको वो जो अमाउंट है टीसीएस का, कौन से पार्टी का है, क्या डिटेल्स है, उसके पूरा डिटेल्स, उसकी पूरी सेल वैल्यू, टीसीएस वैल्यू, पार्टी का नाम, पार्टी का पैन नंबर, है ना, वो सारा जो डिटेल्स है हमें 27EQ इस रिटर्न में हमें फर्निश करना होगा या प्रोवाइड करना होगा, और ये रिटर्न हमें फिलअप करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर की एग्जांपल देखा था उसके अकॉर्डिंगली 60 लाख जो हमने कंसिडरेशन रिसीव किया था, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जो टीसीएस बन रहा है 4497, उतना हमें गवर्नमेंट ट्रेजरी में 7/12/2020, है ना, 7/12/2020 तक हमें जमा करना होगा। और सच ट्रांजेक्शन विल हैव टू बी रिपोर्टेड टू द एबीसी इन फॉर्म 27EQ फॉर क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल यह है कि वेदर टीसीएस सेटअप वुड बी अवेलेबल। अभी ये भी एक बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे। वेदर टीसीएस सेटअप वुड बी अवेलेबल, आंसर इज अ नो। क्या टीसीएस की सेटअप वुड बी नॉट अवेलेबल। सेटअप करने का मतलब तुम लोगों को पता होगा कि टीसीएस का क्रेडिट टीसीएस के पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। जैसे हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करके उसको यूटिलाइज करने के बाद जो नेट लिएबिलिटी हमारी आती है उसके अकॉर्डिंगली पेड किया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कैसा है कि जितना भी टीसीएस आपका कलेक्ट करके डिपॉजिट किया होगा या जमा किया होगा, वो सीधा सीधा आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे उस रिटर्न में आपको इसका क्रेडिट मिलेगा, और उस क्रेडिट के बेस पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन, मतलब उतना, अगर मान लो आपका वहां पे नेट लिएबिलिटी नहीं आ रही है या कोई पेबल भी अगर आ रहा है, तो आपका उतना जो क्रेडिट आपको मिला है टीसीएस का वो वहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है वहां पर टीसीएस का और आपकी लिएबिलिटी नहीं है, तो टीसीएस का क्रेडिट सीधा सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते इस बात को। ठीक है, नेट ऑफ इज अलाउड अंडर द acts if PS Ltd on 1st October 2020 had sold goods worth 1 crore to HD Ltd and collected TCS 3750। thereafter 15 October 2020 MS Ltd purchased goods worth 2 crore from SD Ltd or any other party who therein collect 11,250 as a TCS. Here in the given example, PCS Ltd cannot take credit of RS 11,250 while depositing 3,750, nor can SD Ltd or any other party take any setup while depositing TCS of the RS 11,250। सिंपली हमको ये समझना है कि ये जीएसटी जैसा रूल नहीं है या सर्विस टैक्स का जैसा रूल नहीं है या एक्साइज जैसा रूल नहीं है। इसमें सिंपल बोला गया है,
आपकी जितनी टीसीएस, आपने जितना टीसीएस कलेक्ट किया उतना टीसीएस आपको सीधा सीधा जमा करना है, ठीक है। और आपने अगर कोई परचेस किया, आपका किसी ने टीसीएस काट के जमा अगर किया है, तो उसका क्रेडिट आपको इस टीसीएस पेमेंट करते वक्त वो क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं है। आपको टीसीएस का पेमेंट जमा कराना है। आपका अगर किसी ने टीसीएस काटा है तो वो टीसीएस जमा करेगा, वो आपके 26 एस में रिफ्लेक्ट होगा। आपका जब इनकम टैक्स का रिटर्न आप फाइल करोगे उस समय वो क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा और अकॉर्डिंगली आप उस क्रेडिट, उस अमाउंट को आप आपकी इनकम टैक्स की लिएबिलिटी पे करने के लिए उस क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपका क्रेडिट बैलेंस अगर रहता है तो वो क्रेडिट या वो पैसा आपको रिफंड होगा और वो पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इतना जो हम लोग डिस्कस किया है ये सफिशिएंट है और ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पर्सन पर्सन हैविंग कमीशन इनकम अलॉन्ग विद सेल ऑफ गुड्स। क्या बोला जा रहा है कि पर्सन यानी बिजनेस है, हैविंग कमीशन इनकम अलॉन्ग विद सेल ऑफ गुड्स। उसका कोई ऐसा बिजनेसमैन है या कोई ऐसा फर्म है जिसके दोनों ट्रांजेक्शन है, कुछ कमीशन भी रिसीव होता है, इट मीन्स सर्विस भी प्रोवाइड करता है और मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। अगर दोनों केस अगर किसी एक कंपनी में हो रहे हैं, है ना, या मल्टीपल कंपनी में हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, तो चलो हम देखते हैं। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू दोज पर्सन whose sale or receipt of turnover during the previous year ended on 31st March is more than 10 crore. The person is having two type of income from business: commission income and sale of goods, and then both the receipt from commission business and the sale from the trading business will be considered for determining the limit of turnover of 10 crores. ठीक है। If seller is having commission income 5.5 crore and sale of RES 6 crore for year ended 31st, then the provision under section 206C subsection 1H will be applicable to such seller in financial year 2021 from the 1st October 2020 onward, and accordingly the seller need to collect TCS on receipt of consideration and from the sale of goods subject to other conditions. Despite the applicability of this provision, TCS will not be required to collected in respect of consideration received by the seller with regard to commission income. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख इज पर ईयर बाय, है ना। TCS is required to be collected if the value of consideration in respect of sale good is of more than 50 lakhs for buyer for a year and only in respect of the consideration in excess of 50 lakhs. जैसे AMU Ltd has sold goods worth 25 lakhs to Ron from April to September. Thereafter, AMU sells goods worth 30 lakh to Ron on 1st October. Here, AMU will have to collect TCS only on a 5 lakhs. मीन्स पहले उसने 25 लाख का बेचा, बाद में उसने 30 लाख का बेचा, तो उसको जो TCS जो जमा करना है या TCS जो कलेक्ट करना है वो लास्ट के जो 5 लाख रुपया है उसी के ऊपर उसको TCS जमा करना है कलेक्शन करने के बाद। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से सिचुएशन में हमें TCS लगेगा और कब कब लगेगा और कब कब नहीं लगेगा।
तो हम यहाँ पर एक चीज समझना चाहते हैं। इस चीज को सबसे पहले हम एक एक कुछ तख्ता बनाते हैं। लेट अस टेक द लुक एट सम illustration for better understanding of the new provisions। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब वो एक टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, उसका टर्नओवर है 13 करोड़। एक बिजनेस है, जैसे श्याम नाम का बिजनेस है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, उसका पेपर का बिजनेस है, उसका 19-20 का जो टर्नओवर है वो 13 करोड़। कितने करोड़ का? 13 करोड़ का। और उसी का जो टर्नओवर है 20-21 में, है ना, 20-21 में उसका टर्नओवर है 9 करोड़। ठीक है, कितना हो गया? 19-20 में था 13 करोड़, करंट ईयर में मतलब 20-21 में उसका था 9 करोड़। उसका जो नेचर ऑफ गुड्स था पेपर सेल करना या पेपर मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, अभी दूसरी चीज इसमें हमको समझना है, सेल टू बायर अप टू 30 सितंबर 2020 तक उसने बायर को सेल किया है कितने लाख का? 25 लाख का। कब तक? अप टू सितंबर 2020 तक। और सेल टू बायर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक उसका था 65 लाख का। कितना हो गया? 65 लाख का। अभी हमको समझना है कि एक मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक उसका जो सेल था वो 24 लाख का था। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो उसका सेल था वो था 65 लाख। ठीक है, तो 65 और 60 कितना हो गया? 65 और 60 कितना हो गया? 65 और 24, सॉरी 65 और 24, ये देखो, ये 9 और ये 3 मतलब 9 89 लाख हो गया। ठीक है, 89 लाख हो गया। तो 89 लाख में से हमको कितने पे टैक्स देना है? ओनली 39 लाख पे हमको टीसीएस देना है। मतलब 30 ऑन 39 लाख बीइंग एक्सेस ऑफ 50 lakhs। 50 हमने टोटल कितना रिसीव किया? 89। ठीक है, 89 लाख में से 50 लाख हमको यहाँ पे एक प्रकार से एग्जेम्पशन मान लो। ठीक है, 50 लाख का एग्जेम्पशन है और बचा हुआ 39 लाख है, उसके ऊपर हमको 0.75% टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना है। समझ में आया? क्या समझाया मैंने इसमें कि टर्नओवर जो था 19-20 में 13 करोड़ था, करंट ईयर में उसका 20-21 में 9 करोड़ था। कंपनी का नाम मान लेते एक श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, और उसका अप्रैल 20 से लेकर 30 सितंबर तक उसका 24 लाख का सेल था। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसका 65 लाख का था। टोटल सेल उसका हो गया कितने लाख का हो गया? 24 और 65, ये 89 लाख हो गया। 89 लाख में से 50 लाख उसको मान लो एग्जम्पशन मिल गया, और 39 के ऊपर उसको 0.75% उसको टैक्स देना है। तो उसकी टैक्स लिएबिलिटी 2,925 रुपये बनती है। ठीक है, तो इस तरह एक थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। अब दूसरा एक कंसेप्ट यहाँ लेते हैं। क्या कंसेप्ट लेते हैं कि एक दूसरी कंपनी है श्याम नाम की, उसका बुक का बिजनेस है। ठीक है, उसका फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 10 करोड़ का टर्नओवर था, और करंट ईयर में उसका 25 करोड़ का टर्नओवर हो गया। पहले 19-20 में उसका 10 करोड़ का था,
फिर 20-21 में उसका 25 करोड़ का टर्नओवर हो गया, ठीक है। और उसने क्या किया, एक एक अक्टूबर सॉरी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का 25 लाख का उसका सेल हो गया, ठीक है। अभी इस पे तो हमें कुछ देना नहीं है, तो सीधा सीधा एग्जाम्पशन है। तो अभी नेक्स्ट क्या हुआ कि एक 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 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसका 40 लाख का सेल हो गया। क्या हुआ, एक तो लास्ट ईयर में मतलब 19-20 में उसका 10 करोड़ का टर्नओवर है, और अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर तक का उसका जो सेल जो है वो 25 लाख का है, सॉरी 50 लाख का है। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो सेल है वो 40 लाख का है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में टीसीएस अंडर सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H उसको टीसीएस नॉट अप्लीकेबल होगा, उसको टीसीएस नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि द टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सेस 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं है, इसलिए उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पीके एंड एसोसिएट ये कंपनी है, 19-20 में उसका टर्नओवर है 12 करोड़, ठीक है। करंट ईयर में उसका टर्नओवर है 14 करोड़, और उसने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर तक उसने 55 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया है, सेल कर दिया है। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 तक 21 तक वो 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया है। 55 और 20 कितना हो गया, मोटा मोटा 75 लाख हो गया, है ना। तो 75 लाख जो बन गया, तो 75 लाख में से जो 25 लाख है ना, 75 लाख में से कितना, हाँ सॉरी 20 लाख जो है, जो 1 अक्टूबर 2020 से जो हमने यहाँ सेल किया है ना, तो इस 20 लाख के ऊपर बीइंग सेल आफ्टर 31 सितंबर 2020 उसके ऊपर उसको 0.075% टीसीएस देना होगा, 1500 रुपये, ठीक है। तो ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ हो गई है। जैसे अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। 19-20 में 15 करोड़ का टर्नओवर है, और 20-21 में 20 करोड़ का टर्नओवर है, और अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 30-20 तक उसने 85 लाख का सेल कर दिया है, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 21 तक उसने 15 लाख का सेल कर दिया है, ठीक है। और ये जो सेल हुआ है ये लोकल अथॉरिटी को हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आवर टीसीएस। किसी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लीगेसी, एम्बेसी, है ना, इस किसी को भी जब सेल किया जाता है तो टीसीएस की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द क्लाउज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल टू द लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अभी हम एक दूसरा एग्जांपल यहाँ देखते हैं, मयूर मोटर व्हीकल का है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमको यहाँ लेकर समझना है। 19-20 में उसका टर्नओवर है 16 करोड़ का, करंट ईयर में है 10 करोड़ का, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 मार्च 2020 तक उसने 0 सेल किया है, और 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसने 65 लाख का किया है, ठीक है। तो इसमें इस केस में ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 26 सी सबसेक्शन 1F शैल बी एप्लीकेबल। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1F शैल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस तरह ये
है, तो मुझे लगता है आई वुड लाइक टू ट्राई टू provide the suitable the information regarding the TCS on sales of the goods. This provisions is going to implemented, yeah, this provision is going to with effect from the 1 अक्टूबर 2020। तो इस पूरे कंसेप्ट का पिक्चर क्लियर करने के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स, कुछ सारे क्लैरिफिकेशंस हमने यहाँ डिस्कस किया है। मुझे आशा है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो गई होंगी, है ना। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे इनकरेज मिलता है कि फर्दर वीडियो और अच्छे से अच्छे मटेरियल और अच्छे से अच्छे भाषा का प्रयोग करके मैं आप तक ये मटेरियल प्रोवाइड करने की प्रयत्न या कोशिश करते रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।